Hello students, this is Chandana and I welcome you to Business Studies class. In this class, we will be starting a new topic, that is New Economic Policy 1991. Now before starting this topic, students, I'll repeat it once again that the last topic that we have done, Dimensions of Business Environment, that is very important in this chapter. So please watch the video very carefully and attempt all the case studies related to dimensions of business environment. The case studies of that topic is little tricky. थोड़ा tricky है, कभी-कभी समझ नहीं भी आता है. So please attempt it, right? And videos को आप अच्छे से watch करो. So आज का topic क्या है? आज का topic है New Economic Policy 1991. This topic is there in your economics also. When you do ID, Indian Economic Development, then you will get this topic there also. Okay. तो अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों बनाई गई, पहले हम ये जानते हैं. In 1991, before that, the economic condition of India was very poor. Financial crisis बहुत था, inflation था, जबरदस्त inflation, तो बहुत महंगाई थी. The public sector units, जो public sector enterprises थे, their performance were bad. बहुत ही poor performance था. Therefore, in order to overcome all these problems, the new economic policy was developed by Dr. Manmohan Singh in 1991. There were various changes that had come at that time. There were basically the main three policies that had come was liberalization, privatization and globalization. Right? Liberalization. तो इकोनॉमिक पॉलिसी में एक नया चेंज किया था लिबरलाइजेशन का. Now students, before 1991, like whenever you had to do any business, कोई भी business आपको करना था, so you had to take a lot of licenses. बहुत licenses लेने पड़ते थे, permissions लेने पड़ते थे government के, and tariffs, taxes बहुत payment करना पड़ता था. And there was this quota system also. Quota system क्या होता है? Wherein there is restriction on number of items that you can sell or purchase. Like for example, suppose quota system में उन्होंने ये लगाया हुआ है कि 100 क्विंटल से ज़्यादा आप spices export नहीं कर सकते, या 100 क्विंटल से ज़्यादा आप कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते. ये रिस्ट्रिक्शन लगाया. तो इन्होंने कहाँ पे लगाया? क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगाया. तो वो क्या होता है? दैट इज कोटा सिस्टम, वेयरइन देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन क्वांटिटी. तो उस टाइम लाइसेंसेस बहुत थे, टैक्सेस बहुत पेमेंट करने पड़ते थे, परमिशंस लेनी पड़ती थी, एंड देयर वर रिस्ट्रिक्शन ऑन क्वांटिटी एज आई टोल्ड यू. तो न्यू पॉलिसी क्या है? लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन, as this word liberalization, it comes from the word liberal. Liberal से आता है, liberal मतलब freedom. तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? फ्रीडम दे दी गई. बहुत सारे लाइसेंसेस हटा दिए गए. पूरा अबॉलिश नहीं किया गया, बट हाँ बहुत सी जगहों पे लाइसेंसेस हटा दिए गए, रिड्यूस कर दिए गए, टैरिफ्स, टैक्सेस कम कर दिए गए, एंड कोटा सिस्टम, ये जो क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन था वो भी हटा दिया गया. तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी में क्या हुआ कि जो भी लाइसेंसेस हैं ये अबॉलिश कर दिए गए, टैक्सेस कम कर दिए गए, कोटा सिस्टम हटा दिया गया. ऐसे सब क्यों करा गया? सो दैट यू कैन इजीली डू द ट्रेड, यू कैन इजीली डू द बिजनेस. ये इतना स्ट्रॉन्ग था, ये लाइसेंसेस लेना, ये सब इतना प्रॉब्लमैटिक था कि लोग बिजनेस करने से डरते थे. इसीलिए ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी लाई गई, जिससे आराम से कोई भी बिजनेस कर सके. ओके. Now second change was this privatization. Now as I told you that the public sector enterprises, they were not doing good. बहुत ही हालत खराब थी. And these public sector enterprises, they have this tendency, उनकी एक tendency ये थी, उनका ये mindset था that ठीक है हम बुरा करेंगे, we'll go in losses, then government is there to support us. They will give us budgetary support. हमें financial support पूरा मिलेगा,
सो वो क्या थे, बहुत केयरलेस थे, वो लॉस में जा रहे थे तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता था. Therefore, this change had come, privatization. तो इसमें क्या किया गया, the role of private sector was increased and the role of public sector was decreased. प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा दिया गया एंड पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया गया. The shareholding of public sector was taken and more was given to the private sector. उनसे शेयर होल्डिंग ले ली गई, शेयर्स ले लिए गए और किसको दे दिए गए, प्राइवेट सेक्टर को दे दिए गए. एंड दिस पॉलिसी, ये जो शेयर होल्डिंग लेना और प्राइवेट सेक्टर को देना, इस पॉलिसी को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी. डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी. सो अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी व्हाट हैपेंड, शेयर होल्डिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज टेकन and it was given to private sector. क्यों? क्योंकि हमें प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाना था. Because the public sector was not doing good, तो उनको इतना रोल दे के क्या फायदा. Okay, so this disinvestment policy was followed. And second of all, one board was formed, that is BIFR board. अब ये BIFR board ने क्या किया? This board has adopted various SIC units of public sector. SIC units means the loss making units. ये जितने भी loss making units थे public sector के, वो BIFR ने adopt कर लिए. Adopt कर लिया मतलब अपने अंडर ले लिया. The SIC units which can be revived again, जो loss making थे वो वापस जो profitable बन सकते थे, उनको तो BIFR ने रख लिया. एंड द SIC यूनिट्स जिसका कोई फ्यूचर नहीं था, प्रॉफिट में बदल ही नहीं सकते थे, दे वर इन सो वर्स्ट कंडीशन, इतनी वर्स्ट कंडीशन में थे कि कुछ हो नहीं सकता था उनका. तो BIFR ने उनका क्या किया, ऑल दोज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वर क्लोज डाउन. राइट, इन्होंने SIC यूनिट्स को अडॉप्ट किया, बट जो SIC यूनिट्स वापस से एक्टिव हो सकते थे, वापस से प्रॉफिटेबल हो सकते थे, वो तो उन्होंने रख लिए. अदरवाइज और सबको उन्होंने शट डाउन कर दिया. सो दीज आर द मेन पॉइंट्स इन प्राइवेटाइजेशन. क्योंकि पब्लिक सेक्टर इतना अच्छा नहीं कर रहा था तो प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा दिया गया. दे हैव फॉलोड अ डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जहां पे शेयर होल्डिंग पब्लिक सेक्टर की ले ली गई, छीन ली गई एंड इट वाज गिवन टू प्राइवेट सेक्टर. एंड दिस बोर्ड वाज सेट अप. ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज globalization. As this word comes from the word global, ये global word से आता है. global means world, entire world. तो globalization का meaning होता है free trade between nations. According to this, we can freely trade between nations. अब इतने restrictions नहीं थे. पहले import duty, export duty, बहुत heavy duties थी, बहुत permissions लेने पड़ते थे. बट इसके आने से क्या हुआ, यू कैन इजिली ट्रेड. इन सब में भी रिलैक्सेशन दे दिया गया. अब इंडियन कंपनी कैन ओपन देयर ऑफिसेज, देयर बिजनेसेस इन अनदर कंट्रीज, एंड अनदर कंट्रीज से, दूसरी कंट्रीज से बिजनेसेस, ऑफिसेज, कंपनीज अपनी इंडिया में चला सकते थे. राइट, मतलब आप आराम से ट्रेड कर सकते हो. बाहर के बिजनेसेस इंडिया में अपना सेटअप कर सकते हैं और इंडियन बिजनेसेस बाहर भी आराम से सेटअप कर सकते हैं. सो दैट इज ग्लोबलाइजेशन. राइट, इससे क्या हुआ, सारे नेशंस एक दूसरे के साथ आराम से ट्रेड कर सकते हैं. सो लिबरलाइजेशन इज रिलेटेड टू व्हाट, टू लाइसेंसेस, टैरिफ्स, यू हैव दिस टैक्सेस एंड कोटा सिस्टम. इन सबको कम कर दिया गया. प्राइवेटाइजेशन में किसका रोल बढ़ा दिया गया, प्राइवेट सेक्टर का. एंड globalization is that you can now freely trade in entire world. Okay, so these are actually three main points in new economic policy 1991. We actually have done the third chapter. There are two more topics given in your book. One is related to impact of new economic policy. The another
topic which is just after this topic is impact of new economic policy. That has been deleted this time. इस बार वो delete कर दिया गया है. And if you have the new books, उसमें एक और topic है demonetization. That topic is also deleted. So that topic also we will not be doing it. So 2 topics you don't have to do it. So that means we have completed our 3rd chapter. Okay. Students, we have completed our 3rd chapter. So we'll just do few case studies related to it. Okay. Our case study 1 is the sale of greeting cards, sweets, chocolate, etc. increases in India during Diwali, Guru Parv and Christmas. Name the dimension of environment related to this. इसमें ये लिखा हुआ है कि ग्रीटिंग कार्ड्स की सेल, मिठाई की सेल, चॉकलेट्स की सेल दिवाली टाइम, क्रिसमस टाइम बहुत बढ़ जाती है इंडिया में. So you have to tell the dimension of business environment. So the answer is social environment. If you remember, social environment is related to customs and traditions. तो दिवाली, क्रिसमस, गुरु पर्व ये क्या है? हमारे रीति रिवाज, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं. और ये जब आते हैं तो हमारी सेल बिजनेस पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है. तो आंसर वुड बी सोशल एनवायरनमेंट. ओके स्टूडेंट्स, कमिंग टू द सेकेंड केस स्टडी. आवर सेकेंड केस स्टडी इज just after the declaration of Lok Sabha elections in 2014, the Bombay Stock Exchange Index rose by 1,000 points. Identify the dimension of business environment. ये केस स्टडी में ये बोल रहा है कि जैसे ये लोकसभा इलेक्शंस का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, वैसे ही क्या हुआ? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स बढ़ गए, इंक्रीज हो गए. तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स क्यों बढ़े? क्योंकि लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया. तो ऐसा क्यों हुआ? द रीजन वॉज बिकॉज कोई पॉलिटिकल पार्टी विन किया होगा या कोई पॉलिटिकल पार्टी लूज की होगी. तो ये लोकसभा इलेक्शन किससे रिलेटेड है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है. सो आंसर विल बी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. Okay, students, our third case study is which component of business environment requires that in every packet of cigarette there must be a horrified picture and a statutory warning. ये बोल रहा है कि वो कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट है जिसमें कंपल्सरी है कि टोबैको के पैकेट के पीछे एक हॉरिफाइड पिक्चर होनी चाहिए. हॉरिफाइड पिक्चर किसकी होती है? लंग्स की होती है. एंड ए स्टैच्यूटरी वार्निंग. स्टैच्यूटरी मीनिंग इज लीगल. एक लीगल वार्निंग होनी चाहिए दैट इफ यू हैव टोबैको, अगर आप इनटेक करोगे टोबैको का या सिगरेट्स का, तो क्या क्या लिखा रहता है? दैट इट इज कैंसरियस टू योर हेल्थ. ये लिखा रहता है. तो ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है, केस स्टडी में ये बोल रहा है कि ये लिखना जरूरी है. ये कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट है? दिस इज लीगल एनवायरनमेंट. बिकॉज इन द केस स्टडी इट इज मेंशन्ड दैट इट इज कंपल्सरी टू मेंशन दैट इमेज, टू प्रिंट दैट इमेज एंड टू राइट दैट स्टैच्यूटरी. स्टैच्यूटरी दैट लीगल वार्निंग लिखना जरूरी है. सो द आंसर इज लीगल एनवायरनमेंट. I hope student you must have understood this case study. Now we will do the next one. Students, our next case study is identify the type of dimension of environment to the following are related. आपको क्या बताना है? आपको dimensions बताने हैं business environment के. The first is banks reduces the interest rate on house loan. बैंक ने क्या किया? बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया हाउस लोन से. तो ये कौन सा एनवायरनमेंट होगा स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आ रहे हैं. इकोनॉमिक टर्म है इंटरेस्ट रेट, इसमें चेंजेस आ रहे हैं. तो
ये कौन सा एनवायरमेंट हो जाएगा? आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, इट इज इकोनॉमिक एनवायरमेंट. Coming to the second one, number of working women is increasing. Working women, independent women increase हो रही हैं, working women increase हो रही हैं. तो ये किससे रिलेटेड है? वुमेन सोसाइटी में ही आ रही हैं, वो एजुकेटेड हो रही हैं, वो इंडिपेंडेंट बन रही हैं. तो आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर विल बी सोशल एनवायरमेंट. सी, दिस वाज रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट. ये सोशल एनवायरमेंट आंसर क्यों हुआ? क्योंकि वो वर्किंग हो रही हैं वुमेन. थर्ड इज रिजर्वेशन ऑफ टिकट्स बाय इंटरनेट. अब आप टिकट्स कैसे बुक करा रहे हो? बाय यूजिंग इंटरनेट. तो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया. सो द आंसर इज टेक्नोलॉजिकल. Fourth is prohibition of alcohol beverages to be advertised. इस लाइन का ये मतलब है कि आप अल्कोहल बेवरेजेस का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हो. इट इज प्रोहिबिटेड. प्रोहिबिटेड मीन्स बैंड. प्रोहिबिटेड मीन्स बैन. बैन लगा दिया गया. सो I think it is clear. ये कौन सा environment हो गया? This is legal environment. Okay. Now coming to the last one. Winning of Aam Aadmi Party has built up confidence in economically weaker people. आम आदमी पार्टी के जीतने से क्या हुआ? लोगों में कॉन्फिडेंस आया. आम आदमी पार्टी के जीतने से. तो ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है. सो आंसर विल बी पॉलिटिकल एनवायरमेंट. कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ दिस आम आदमी पार्टी. बिकॉज इंटरेस्ट रेट था, उसकी वजह से चेंजेस आ रहे थे. सो दैट इज इकोनॉमिक एनवायरमेंट. विमेन वर बिकमिंग मोर इंडिपेंडेंट, वर्किंग वुमेन हो रहे थे. सो दैट इज सोशल एनवायरमेंट. यूज ऑफ इंटरनेट, सो दैट इज टेक्नोलॉजिकल. यहाँ पे प्रोहिबिशन हो रहा था, बैन लग रहा था. सो दैट इज लीगल एनवायरमेंट. एंड सम चेंजेस वर हैपनिंग बिकॉज ऑफ आम आदमी पार्टी, उनके जीतने से. सो द आंसर इज पॉलिटिकल एनवायरमेंट. I hope students this case study is clear. We'll do the next. Students, our next case study is a recent rate cut in the interest on loans announced by banks encouraged Amit, a science student of Progressive School, to take a loan from State Bank of India to experiment and develop cars to be powered by fuel produced from garbage. बैंक्स ने अभी क्या किया? लोन्स पे इंटरेस्ट रेट कम कर दिया. तो अमित जो कि एक साइंस स्टूडेंट था, उसने उस टाइम लोन ले लिया. क्यों लोन लिया? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गए थे. लोन इसलिए लिया क्योंकि वो अब एक ऐसी कार डेवलप करना चाहता है जो कि गार्बेज से चलेगी. गार्बेज से चलेगी मतलब फ्यूल जनरेट होगा गार्बेज से, एंड देन इट विल वर्क. He developed such a car and exhibited in the science fair organized by Directorate of Education. He was awarded first prize for his invention. उसने ये नई कार डेवलप करी एंड उसने साइंस फेयर ऑर्गेनाइजेशन एग्जीबिशन में अपना प्रेजेंट की ये कार एंड ही वाज अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज. एंड यू हैव टू टेल द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. So students, why he has taken the loan? Because interest rate has gone down. So answer will be, the first dimension will be economic environment. Why economic environment? क्योंकि interest rate कम हो गए थे, इसलिए उसने लोन लिया. अब वो लोन लेके उसने क्या किया? एक ऐसी कार डेवलप करी जो ऐसे फ्यूल से चलती है. जो कैसे डेवलप हुआ, कैसे बना वो फ्यूल? by using garbage. तो कुछ नया टेक्नोलॉजी आया
There is a different way of producing that fuel by using garbage. So the answer will be technological. So that means technological. So that means in this case today you have two answers, economic environment क्योंकि interest rate की वजह से, and ये कुछ नया production कर रहे हैं, method of production use कर रहे हैं, so answer will be technological. Okay. Students, our next case study is the court passed an order that all schools must have water purifier for school children. यहाँ पे भी आपको dimensions ही बताने हैं. The court passed an order. Order pass किया कि water purifier school children के लिए होना जरूरी है. Order pass करना कौन सा dimension हो जाएगा? That is legal. Legal environment क्योंकि एक order दिया गया है. Society in general is more concerned about quality of life. ऐसा क्यों order दिया गया है? क्यों? क्योंकि society in general is more concerned about quality of life. ऐसा ऑर्डर इसलिए रहेगा रखा है. तो आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर विल बी सोशल. क्योंकि सोसाइटी बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो गई है, लाइफ की क्वालिटी पे बहुत ध्यान रख रही है, इसलिए ऐसा ऑर्डर दिया गया है. सो नेक्स्ट विल बी सोशल. नेक्स्ट इज innovative techniques are being developed to manufacture water purifier at competitive rates. ऐसे इनोवेटिव टेक्निक्स यूज करी जा रही हैं जिससे ऐसा वाटर प्योरीफायर बने जो कि रीजनेबल रेट पे बन सके. इनोवेटिव टेक्निक्स. सो आंसर विल बी टेक्नोलॉजिकल. नेक्स्ट इज incomes are rising and children at home are also drinking purified water. क्योंकि इनकम बढ़ रही थी, पेरेंट्स की इनकम बढ़ रही थी, लोगों की इनकम बढ़ रही थी, इसलिए वो चिल्ड्रन घर पे भी कौन सा पानी पी रहे हैं? प्योरिफाइड. सो द आंसर विल बी इकोनॉमिकल. The government is also showing positive attitude towards the water purifier business. गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही थी किस चीज को? ये वाटर प्यूरिफायर बिजनेस को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी. जहां गवर्नमेंट कर रही तो आंसर क्या हो जाएगा? इट विल बी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. I hope students all these case studies are clear. Thank you.